All of us, we know Pastor Ezekiel because he's a young man. And this young man has preached so many times. And he told me yesterday, he said, you ask Nathaniel if he can speak. And without any reservation, he said, yes, uncle, I'm ready. So I'll invite Jimmy to come and do the interpretation. God bless you all. Sit down and enjoy God's word. Amen. Good morning. Praise the Lord. I'm sorry my Hindi is not very good. So I'm going to speak in English and I'm going to feel like I'm in India again. We're there for missions a couple of months ago. We do some work in North India, reaching the unreached. And God has been doing great things. And every time I go there, I want to try and speak in Hindi, but I just can't. मैं परमेश्वर के मीठे और पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को सुसमाचार देता हूँ और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आज मैं भारत में हूँ क्योंकि हमने उत्तर भारत में कई बार परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया और ये मौका परमेश्वर ने दिया कि इस कलीसिया में आके फिर उसकी महिमा को इस्तेमाल करें इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ I love my Uncle John. We go back to childhood. Yes, he used to bully us, but he was a very good uncle. I have seen him and Dad pioneer the work of God in Fiji. पास्टर जॉन और मेरे पिताजी जो है उनको मैं बचपन से जानता हूँ और उन्होंने हमें काफ़ी कठिन समय दी और उन्होंने जो परमेश्वर के लिए सेवाएं दी उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो They are my role models. If I had another father, then he would be my second father. वे मेरे लिए एक काफ़ी आदर्श के समान है अगर कोई मेरे पिता के अलावा और कोई है तो पास्टर जॉन है So it's a real honor and privilege to be here. और ये काफ़ी आदरणीय बात है कि आज इस स्थान में मैं खड़ा हूँ I'm sorry it's taken 30 years. I have come and preached in Liverpool, in another church, and another church in Blacktown, and in Melbourne. But this time when he asked me, that's why I wasn't hesitant. मैं क्षमा चाहता हूँ पास्टर जॉन से कि मुझे यहाँ आने के लिए 30 साल लगे मैं कई बार ऑस्ट्रेलिया आ चुका हूँ लिवरपूल शहर में और मेलबर्न में भी मैं परमेश्वर के वचन को बांटा Praise the Lord. Praise the Lord. Who is looking for a miracle this morning? कौन है आज जो चंगाई को देखना चाहता है This world is changing. People have no faith in miracles anymore. ये दुनिया जो है बदलती जा रही है और लोगों को चंगाई के ऊपर विश्वास नहीं है But our God is the same yesterday, today, and forever. परंतु हमारा परमेश्वर कल आज और सदाकाल वो सदा एक ही है The miracles He did 2,000 years ago can still happen today. जो चमत्कार उसने 2000 साल पहले किया था वो आज भी हो सकता है The miracles we saw growing up in Fiji in the 80s and 90s can still happen today. जो 80 के साल में और 90 के साल में जो आश्चर्यक्रम हमने देखे वे आज भी हो सकते हैं Because it's not us who do the miracle, वो हम नहीं है जो आश्चर्यक्रम करते हैं but it's the same living God who does that miracle. परंतु वही जीवित परमेश्वर है जो आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में करता है But He wants to use you and me. परंतु वो आपको और हमें इस्तेमाल करना चाहता है Are you ready? क्या आप तैयार हो Are we the hands and feet of Jesus Christ? क्या हम परमेश्वर के लिए हाथ और पांव तैयार है हमारे I live my life to be missional. और मेरे जीवन जो है एक मिशनरी के समान मैंने जिया है And I love what you are doing. The food pantry, the outreach. It just melts my heart this morning. और जो आप सेवाएं करते हैं जैसे फूड पेंट्री है और सुसमाचार उसके नाते से मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित और आनंदित है Because my friends, we are God's plan A. क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों हम परमेश्वर की योजना के अनुसार सर्वप्रथम है उसकी The योजना moment we get saved, we join Him in His mission. जैसे हम एक बार उद्धार पा सकते हैं पा लेते हैं हम परमेश्वर के साथ उस योजना में जुड़ जाते हैं So I'm really grateful what you are doing for Jesus in this इसलिए community. आप यीशु मसीह के लिए जो करते हैं उससे मैं काफी आनंदित हूँ This morning I want to share a very famous story where Jesus raises Lazarus. मैं एक काफी बहुत ही मशहूर कहानी जो पवित्र शास्त्र में हमें मिलती है यीशु ने लाजरस को जिलाया And from that story I want to get 4 keys that is going to help us find our miracle today. और इस कहानी में से मैं 4 संदेशों को ऐसे लेना चाहता हूं जो आपको और हमको परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा Praise the Lord. Praise the Lord. The book of John, I love it. If you want to study a book with your family,
to Book of John. ये जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है वो काफी प्रिय एक पुस्तक है। अगर आप अपने परिवार के साथ वचन में से सीखना चाहते हो तो इस पुस्तक के ऊपर आप अध्ययन कीजिए। Because John was that beloved disciple who was with Jesus from the start to the very end. क्योंकि यूहन्ना वो यीशु मसीह का एक प्रिय शिष्य था जो यीशु मसीह के साथ शुरुआत से अंत तक उसके साथ बना रहा। Out of all the disciples, when he writes the book of John, he starts, in the beginning was the word. इन सारे पुस्तकों के सिवाय जब यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा तो उसने लिखा आदि में वचन था। And then he gets the vision that we read in Revelation. और जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो जो प्रकाशन के विषय में यूहन्ना ने लिखा है। But when we come to the book of John, from chapter 2 to chapter 11, there are 10 chapters where he focuses on 7 miracles. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 2 अध्याय से लेके 11वें अध्याय तक जब हम इस 10 अध्याय को पढ़ते हैं तो हर एक आश्चर्य कर्म के विषय में हमें बतलाता है। These miracles are like signs that John is telling us. और ये जो आश्चर्य कर्म है वो विज्ञान से भी आगे बढ़कर है ऐसे यूहन्ना हमें दिखलाता है। These sign miracles give us a sense of the authority and the supernatural power of Jesus Christ. और ये जो आश्चर्य कर्म चिन्ह और आश्चर्य कर्म से जो जुड़े हैं वो परमेश्वर के उस अधिकार को हमें दिखलाता है। And then we come to chapter 11, and this is where Jesus raises Lazarus after 4 days. This is the final and most spectacular sign of it all. और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में आते हैं जहां यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया, ये बहुत ही बड़ा ही एक आश्चर्य कर्म है। Now you have a lot of signboards in Sydney. अभी हम सिडनी शहर में जाए तो कहीं भी हम सूचना के जो नोटिस बोर्ड है वो देखेंगे। Everywhere I go, I miss the turn off, I miss that sign, then I have to make a U-turn and come back. और जब मैं गाड़ी चलाता हूँ इस नोटिस और इस चिन्ह को देख के भी मैं कई बार रास्ता चूक जाता हूँ। Because where I come from, we have 6 streets going this way and we have 6 streets going that way, and that's our whole community. और मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ 6 लाइनें इस तरफ जाती है और 6 लाइनें इस तरफ जाती है, उतना ही है और कुछ नहीं। So I get lost. और मैं इस सिटी शहर में आके मैं खो जाता हूँ। See, the sign itself is something that points us somewhere away from itself. और जो चिन्ह जो है वो हमें मार्गदर्शन करता है कहीं और आगे जाने के लिए। A sign will point us towards something, towards somewhere, towards somebody. एक चिन्ह जो है हमें दिखलाता है किसी जगह जाने के लिए, किसी और जगह जाने के लिए या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए। The sign itself is not as important as where it is directing us and how to get there. ये चिन्ह इतना महत्वपूर्ण नहीं है परंतु जिस स्थान में हमें पहुंचना है वो महत्वपूर्ण है। Apostle John is showing us who Jesus is to show what God is doing through his son. और यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह की खूबियों को दिखलाया कि हमारा महान परमेश्वर कितना महान है। He is pointing to the work that God began in Christ Jesus, and Jesus continues to work for us, with us, and through us. और यूहन्ना ने ये दिखलाया था कि परमेश्वर ने उसके वचन के अनुसार कैसे यीशु मसीह के द्वारा कार्य किया और यीशु मसीह हमें दिखाया कि वचन कैसे कार्य करता है। My friends, John 11 is just not a story about Jesus raising a man from the dead 2000 years ago, but it's pointing us towards God's ongoing work in our lives. मेरे प्रिय मित्रों, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं है कि यीशु मसीह ने लाजरस को मृतकों में से जिलाया, परंतु ये परमेश्वर के सामर्थ के कार्य को दिखलाता है। This morning I want to tell you that Lazarus stands for everything in our lives. और इस सुबह के अवसर में मैं आप सभी को दिखलाना चाहता हूँ कि लाजरस जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों से मिलता है। Everything that makes us feel helpless. हर एक उन बातों को जिससे हम ऐसे लगते हैं कि हमारे पास कोई मदद नहीं है। Everything that we feel that we cannot do anything about. और हम ऐसे हर एक बात को महसूस करते हैं जो हम अपनी सामर्थ्य से कर नहीं सकते। There are some things in life we can change, but there are things we have no control over. ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में हम बदल सकते हैं, परंतु और ऐसी बातें भी हैं जो हमारे सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते। You just have to look at the news. We have no control over the war. We have no control over the fuel prices. हम सिर्फ समाचार की ओर देखें टेलीविजन में या न्यूज़पेपर में, हमारा कोई अधिकार नहीं होता है कि हम उस युद्ध को रोके या बढ़ती ईंधन को रोक सके। Maybe it's your children that's making you helpless. Maybe it's your job that's making you helpless. There are so many things that makes us
helpless at times. शायद आपके बच्चे हैं जो आप ऐसे महसूस करते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, या आपकी नौकरी ऐसी हो सकती है। Whatever your Lazarus is today, whatever is breaking your heart, जो कोई अगर आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं से लाजरस हो, या जो कोई जिस बातों से आपका मन या दिल दुखी हो, whatever is making you anxious, whatever is making you helpless, I want to tell you that God is grieving with you this morning. कोई भी बातें अगर आपके जीवन में चिंता लाती हो, तो मैं ये बात को आपको बतलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज कार्य करने वाला है। In this passage in John 11:35 it reads, Jesus wept. यूहन्ना उसका 11 और 35 आयत में यूं कहता है कि यीशु रोया। In verse 33 and 38 the Bible says Jesus was deeply moved and greatly troubled. और उसके पहले की 2 आयत 33 आयत में हम देखेंगे कि यीशु मसीह को काफी दुख हुआ इस बात को जान के हुए। Can I assure you this morning that the same Jesus that weeps for Lazarus will weep for you this morning. मैं आपको ये भरोसा आज सुबह के अवसर में दिखाना चाहता हूँ, वही यीशु मसीह जो ये लाजरस के लिए रोया, वो आज भी हमारे लिए रोता है। So this morning let's draw 4 keys from this passage that can help us find our miracle. और इस कहानी में से अगर हम 4 बातों को निकालें तो हमारी चंगाई काफी नजदीक आएगी। Let's turn to the book of Luke and we're going to read from verse 38 to 39. और हम लूका रचित सुसमाचार की ओर बढ़ेंगे। We're just going to read one verse at a time. Verse 38 to 39. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Luke chapter 11 verse 33. लूका रचित सुसमाचार उसका 38. उसका 11वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत हम पढ़ेंगे। और वहां यूं लिखा है कि John. और यूहन्ना 11 उसकी 38 में यूं लिखा है कि यीशु उदास होकर जब कब्र पर आया, वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। And Jesus said, take away, verse 39. और उसके अगली आयत में यूं लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। The first thing I want to ask you this morning, who takes away the stone? मैं पहले एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन पत्थर को हटा सकता है। In this story we see if Jesus wanted, he could have moved the stone. अगर हम ऐसा देखें तो यीशु मसीह स्वयं ही इस पत्थर को हटा सकता था। Because we know Jesus said, if we have faith as small as a mustard seed, we can tell this mountain to move and uproot itself. क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास एक राई की दाने के समान हो तो तुम इस बड़े पहाड़ को अपने जीवन में से निकाल सकते हो। See, Jesus could have moved the stone, but he didn't. He wanted somebody else to do that for him. यीशु उस पत्थर को हटा सकता था, परंतु वो ये नहीं चाहता था, इसलिए उसने दूसरे को मौका दिया कि वो पत्थर को हटाए। See, the great thing about Jesus is that he wants his followers to work with him. एक महान कार्य जो यीशु मसीह की प्रशंसा के बारे में होगा कि यीशु मसीह चाहता है कि उसके लोग उसके कार्य के अनुसार कार्य करें। He wants us to be his hands and feet. वो चाहता है कि हम उसके लिए हाथ और उसके लिए पैर बने। I'll say a little story about my son. मैं एक छोटी कहानी मेरे बेटे के विषय में कहना चाहता हूँ। When he was little, one day he wanted to help me with some painting. और एक ऐसा समय था कि वो मुझे मदद करना चाहता था एक दीवार को रंग लगाने के लिए। I wasn't so sure. और मैं इतना यकीन नहीं था। But it was nice that he wanted to help me. परंतु ये अच्छी बात थी कि वो मुझे मदद करना चाहता था। So I gave him a paintbrush in a small corner of the room to paint. और मैंने उसे ब्रश दे दिया और रंग दे दिया ताकि वो दीवार के कोने में जाके उसे लगाए। Now he was not doing very well. और वो अच्छा कार्य नहीं कर रहा था। He had more paint in his hand than on the wall. वो दीवार से ज्यादा उसके हाथों में ज्यादा रंग लगा हुआ था। He asked me, Dada, is this okay? और उसने मुझसे पूछा, पिताजी क्या ये सही है? And I said, that's awesome, son, even though I knew I have to go back and paint over it. मैंने उसके कार्य को देखा और मैंने फिर भी कहा कि बेटा तूने बहुत अच्छा कार्य किया। At one point he was literally painting the wall with his hand on the wall. और एक ऐसा समय आ गया कि वो रंग अपने हाथों में लेके दीवार के ऊपर लगा रहा था। There was paint in his hair and his face.
और ऐसा समय आ गया कि रंग उसके सिर के ऊपर है, उसके चेहरे के ऊपर है। My daughter always reminds him of that. और मेरी बेटी हमेशा इस बात को मुझे याद दिलाती है। But you have no idea the joy that filled my heart to see my son trying to help me. परंतु आप यकीन नहीं करोगे कि जो आनंद मुझे आया कि मेरा बेटा मुझे मदद करने के लिए आया। In the same way, every time we put our hands in our Father's business, whether it's serving coffee, जब ऐसा इसी समान अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, यानी एक कॉफी भी अगर किसी को देना हो तो, whether it's opening the church, playing music, या शायद संगीत बजाना हो या कलीसिया के द्वार को खोलना हो, whether it's welcoming people and being compassionate, या आते हुए नए लोगों का स्वागत करना, उनसे प्रेम दिखाना, whether it's being generous to people, और कहीं एकदम भावुक होकर उन्हें आदर देना। do you know how pleasing it is to your Father in heaven? यह बातें, ये सारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर के लिए कितनी आनंद की ये बातें हैं। You know, our God can do everything by himself, हमारा परमेश्वर उसके सामर्थ के द्वारा सभी कुछ कर सकता है, but he wants to use you and me in his mission. परंतु वो इस कार्य में, इस योजना में आपको और हमको इस्तेमाल करना चाहता है। The second thing I want to look at is, why does this stone need to be removed? और दूसरी बात ये मैं बतलाना चाहता हूँ कि इस पत्थर को क्यों हटवाया गया। You know, sometimes we think it's our responsibility to raise the dead. कई बार हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारा कार्य है कि मृतकों को जिलाए, And we get stressed, we get overwhelmed. और हम चिंता में और कठिनाई में फंस जाते हैं। Can I tell you this morning, all we have to do is move the stone away. और इस सुबह के अवसर में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमें सिर्फ इतना ही कार्य करना है कि उस पत्थर को हटाना है। It's God's responsibility to raise the dead. और ये परमेश्वर का कार्य है मृतकों को जिलाया करना। The stone stands between Jesus and your miracle this वो morning. पत्थर हमारे आश्चर्यकर्म और हमारे बीच और यीशु मसीह के बीच में एक दीवार के समान है। Is there something in your life that needs to be removed this morning, क्या आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको निकालनी है, so that you can be closer to Jesus, ताकि आप यीशु मसीह के और करीब आ सको, so that you can be closer to your miracle? ताकि आप आपके आश्चर्यकर्म के करीब आ सको। Maybe it's a stone of resentment this morning. अगर ये वो पत्थर जो होगा विरोध का पत्थर होगा, Maybe it's a stone of fear this morning. शायद वो पत्थर एक भय का पत्थर Maybe it's a होगा, stone of unforgiveness this morning. शायद वो पत्थर एक अक्षमा का पत्थर होगा, Maybe it's an old hurt in your life. और शायद वो कोई जो पुरानी चोट होगी, Maybe it's an unhealthy habit. और शायद वो अस्वास्थ्य वाली कोई बुरी ऐसी आशा होगी। In this story, the stone had to be removed, और इस कहानी में उस पत्थर को हटवाया गया था, and the responsibility was given to Martha to move the stone. और इस कार्य को बहन मार्था को इस कार्य सौंपा गया था। But we see Martha had an objection. परंतु बहन मार्था का एक सवाल था। In verse 39, Martha says, Lord, we can't move the stone, because if we move the stone, there's going to be a smell and it's not going to be good. और 39 आयत में यूं लिखा है, मार्था यूं कहती है, प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्यों उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। Martha starts giving advice to Jesus. और जो बहन मार्था है यीशु मसीह को निर्देशन कर रही है। How often do we start giving advice to Jesus? कि कितने बार हम यीशु मसीह को निर्देश करते हैं। Sometimes we don't want to move the stone because of what stench might be behind it. कई बार हम अपने जीवन में उस पत्थर को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि उस पत्थर के पीछे बड़ी दुर्गंध है। We are worried what sort of odor it might let other people know that's hidden behind the stone. और हम इस डर में हैं कि अगर हम इस पत्थर को हटा दे तो लोग उस दुर्गंध को जान पाएंगे। Have we let a stone stand in front of our miracle this morning? क्या हमने उस पत्थर को हमारे आश्चर्यकर्म के आगे दीवार के समान रखा है? Because we are worried what's hidden behind it. क्योंकि हमें चिंता है कि उस पत्थर के पीछे उस बदबू है। But Jesus says, take away the stone. पर यीशु कहता है उस पत्थर को हटाओ। In verse 40, Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? और 40वीं आयत में यूं कहता है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी?
Friends, do you want to see the glory of God? मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो? Is there a stone between you and Jesus this morning? क्या यीशु मसीह और आपके बीच में एक पत्थर, एक बाधा बनी है, Stopping you from drawing closer to Him? क्या यीशु मसीह के पास जाने से आपको ये रोकते हैं? If you want to draw closer to Jesus today, अगर आप यीशु मसीह के और करीब जाना चाहते हो, you have to keep asking God, is there a stone that needs to be taken away? और आप सब पर यीशु से सवाल करते हो, क्या एक पत्थर है जो मुझे निकालना है? Is there a stone blocking your miracle today? क्या एक ऐसा पत्थर है जो हमारे आश्चर्य कर्म को रोके रखा है? The second key I want to get from this, in verse 33, Jesus cries out, Lazarus, come forth. और उसके बाद में जो है वो यीशु मसीह बड़े शब्द से कहता है, हे लाजर तू निकल आ। The second key I want to share with you is there a response holding your miracle? और दूसरी बात को मैं दिखलाना चाहता हूं, क्या आपके आश्चर्य कर्म के लिए निरुत्तर आपके पास? See, we see Jesus is firm, he is very precise, he cries out loud, Lazarus, come out. देखिए यीशु मसीह अपने इस आश्चर्य कर्म में काफी विश्वास के साथ और उसकी आवाज में जो बल है उससे कहता है, लाजर तू बाहर निकल आ। I'm glad he said, Lazarus, come out. और मैं आनंदित हूं कि इस बात में यीशु ने कहा, हे लाजर तू निकल आ। If he just said, come out, everyone would have come out of their tombs. अगर उसने ऐसा कहा होता, आ जा, निकल आ, तो काफी अन्य लोग भी निकल आते होते। But on that day, Jesus was raising Lazarus, and Lazarus came out. और उस दिन यीशु मसीह ने लाजर को मृत्यु में से जिलाया, इसलिए लाजर बाहर आया। But we see in the story that Lazarus has been dead for several days. और हमने कहानी में देखा है कि कई 4 दिन हुए लाजर मरा हुआ है। But the moment Jesus says, Lazarus, come out, और जब यीशु मसीह कहता है, लाजर तू निकल आ, something starts happening. और उसी क्षण कुछ होने लगता है। His heart starts beating. और उसका दिल धड़कने लगता है। The blood starts flowing. और लहू बहने लगता है। The body starts moving around. और उसका शरीर जो है वो हिलने लगता है। My friends, not only does the wind and the rain hear his voice, ओ मेरे प्रिय मित्रों, सिर्फ हवा और तूफान सिर्फ उसकी आवाज को नहीं but सुनते, death could not hold Lazarus down. परंतु मृत्यु तेरा डंका है, लाजरस को वो थामे न रख सकती। When Jesus calls out, Lazarus, come out, जब यीशु ने पुकारा है, लाजर तू निकल आ, I can feel the devil trembling with fear. और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि कई मृतक डर गए होंगे, Because he knew that Jesus has power over death. क्योंकि वे जानते थे कि यीशु मसीह के पास मृत्यु के ऊपर जय है। If you're waiting for your miracle this morning, can I ask you, have you done what he has asked you to do? अगर आप अपने आश्चर्य कर्म के लिए रुके हो, तो क्या मैं आप सबसे एक सवाल कह सकता हूँ कि आपने उस बात को किया जिसे यीशु मसीह ने आपसे कहा है? Has God asked you to do something and you haven't done it? क्या यीशु मसीह ने आपसे कुछ करने के लिए कहा है और आपने उस बात को किया नहीं है? And if you have not done it, you can't ask for further instructions. अगर आपने इस कार्य को नहीं किया है तो आगे के निर्देशों को आप नहीं मांग सकते। Maybe it's been a few years Jesus asked you to do something. कई साल हो चुके होंगे अगर यीशु मसीह ने आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहा होगा। He hasn't forgotten what he told you. वो उस बात को भूला नहीं है जिस बात को उसने आपसे कहा है। You know, some of us want others to come and get us from our tomb. कई ऐसे लोग हैं जो ये ऐसी आशा रखते हैं कि दूसरे लोग आके हमें कब्रों में से निकाले। We stay in our rooms. We want somebody else to come and get us. हम अपने कमरे में रहते हैं और हम ऐसी आशा रखते हैं कि कोई और आके हमें हमारे कमरे में से बाहर निकाले। But friends, we have to respond when Jesus calls us. परंतु मित्रों, जब यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमसे बात करता है, तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना है। In the story we see Jesus didn't tell everyone else to go in, get him warm and bring him out. और इस कहानी में हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा लोगों से कि आप कब्र के अंदर जाएं और उसे लेके आए। He simply said, Lazarus, come out. उसने सिर्फ इतना कहा, हे लाजर तू निकल आ। If a dead man can respond to God's voice, अगर एक मृत व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुन के आदर कर सकता है, there is no excuse for us not to respond to him. तो हमारे लिए कोई ऐसा कारण नहीं है कि यीशु मसीह के आदेशों को हम निभाएं नहीं। Many years ago in our church, there was a need
for a leader for the host. और कई साल पहले हमारे कलीसिया में एक जरूरत थी, जो नेतृत्व करने वाले थे उसकी एक जरूरत थी। And the Lord started talking to me, saying, Nathaniel, you can do this. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, वो कहने लगा, नथानिएल आप ये कर सकते हो। I said, no, Lord, that's not me. और मैंने परमेश्वर को प्रत्युत्तर दिया, मैं नहीं प्रभु। I'm going through a difficult season and I'm already serving in so many ways in the church. और मैं कई कठिनाई समय से गुजर रहा हूँ और अनेक कार्यों से मैं कलीसिया में मदद और कार्य कर रहा हूँ। I said, Lord, it's for somebody else. अगर मैंने ऐसा कहा, परमेश्वर किसी और को तू ले ले। There are more capable people in our church. वो कई बड़े और सामर्थ रखने वाले लोग हैं, तू उनको चुन ले। But this voice got louder and louder. परंतु ये परमेश्वर की आवाज और मजबूत होती गई। And I chose to respond to God's call. और मैंने परमेश्वर की उस आवाज को उत्तर दिया। It was the most wonderful decision I made. और ये बहुत ही अच्छा निर्णय था जो मैंने लिया था। Within weeks, I had about 30 people in my host team. और एक हफ्ते के अंदर कम से कम 30 लोग आ गए जो इसका नेतृत्व कर सके। My pastor said, Nathaniel, we have to make you our recruiter. और मेरा पास्टर मेरे पास आके ऐसे कहने लगा, नथानिएल तुम्हें इसका इन सारे लोगों का एक रिक्रूटर हमें निर्णय करना होगा। Because in the church, it's only the 10% that do all the work. क्योंकि कलीसिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो कलीसिया के जुड़े हुए हर एक कार्य को करते हैं। The 90% will come and watch the show and go away. और 90% लोग ऐसे हैं जो आते हैं, शो को देखते हैं और फिर लौट जाते हैं। But Jesus wants us all to be involved. परंतु यीशु मसीह चाहता है कि हम हर कोई इस कलीसिया से जुड़े हुए रहे। I have a group in Palmerston North called Satsang. और मेरा एक शहर में मेरा एक संघ है जिसका नाम है सत्संग। And every Friday we meet. और हम हर एक शुक्रवार को मिलते हैं। And we have maybe 70 to 120 people in the group. हम कम से कम 70 से 120 लोग उस संघ में होंगे। But I roster everybody. और मैं हर एक को मैं उनको निर्णय से डेट देता हूँ। I want everybody to be involved. और मैं चाहता हूँ कि हर कोई उस संघ में से हर एक कार्य में शामिल होए। Anyway, I found that when I took up the hosting role, so many people's lives were transformed. मैंने ये जान लिया कि जब मैंने इस नेतृत्व के कार्य को लिया तो काफी लोगों का जीवन In our church, there were people who were shy, who were timid, who were hesitant, who had never served in the house. हमारे कलीसिया में कई ऐसे लोग थे जो शर्माते थे और कभी भी उन्होंने कलीसिया में कोई कार्य नहीं किया था। Suddenly they were finding boldness to stand and serve. और अचानक से उनके जीवन में वो सामर्थ आ गया। And in the 2 years of hosting, I met more people in our large church than 20 years before. और इस 2 साल के नेतृत्व कार्य में जब मैं स्थान पे था तो मैंने अनेक लोगों को मिला जो हमारे कलीसिया में थे। Even though I was going through a lot of things in my life at that time, but by responding to God, I saw breakthrough after breakthrough. मेरे जीवन में काफी कठिनाई और समस्या थी, परंतु जब मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और मेरा उत्तर दिया तो मेरे लिए छुटकारे के ऊपर छुटकारे मेरे जीवन में होते गए। At the end of 2 years, the Lord said to me that you've done it, but I said, Lord, no, I want to keep doing this. और 2 साल खत्म हुए, परमेश्वर ने कहा तूने तेरा समय बिता चुका है, परंतु मैंने परमेश्वर से कहा नहीं परमेश्वर, मैं और करना चाहता हूँ। You know, friends, once you let go of something, God will give you something else to do. मेरे प्रिय मित्रों, अगर कुछ बातों के लिए आप छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपको उससे अच्छी बातें आपके जीवन में देगा। God chose me to become the associate pastor. और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि एक एसोसिएट पासवान की तरह से रोल में आगे बढ़ने के लिए। And start this outreach group called Satsang. और इस संघ को चलाने के लिए जिसका नाम सत्संग करके उसे नेतृत्व करने के लिए। But I responded to God's call. परंतु मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। Let me share another story when I didn't respond to God. मैं एक कहानी आपके बीच में बांटना चाहता हूँ जब भी मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना पर उसका उत्तर उसे नहीं दिया। I had a little brother who was 10 years younger than me. मेरा एक छोटा भाई था जो 10 साल से भी कम मेरी उम्र से कम था। And he started university in my city. और उसने पढ़ाई मेरे शहर में उसने शुरुआत की। But he was staying with my parents in another city. परंतु वो मेरे माता-पिता के साथ एक दूसरे शहर में वो रहता था। So every Tuesday to Thursday he would stay with us. और हर मंगलवार से गुरुवार तक वो हमारे संग रहता था। On this Thursday night we had our regular Bible study and discussions.
और गुरुवार रात को हमारी जो बाइबल शिक्षा है उसमें और बातचीत में वो था। And he asked me some precarious questions like, how can God forgive me? और उसने ऐसा प्रश्न कहा कि कैसे परमेश्वर मुझे क्षमा दे सकता है। Next morning he left. और अगली सुबह वो निकल गया। And all day God was nudging me to call him. और उस दूसरे दिन परमेश्वर हमेशा मुझसे बात कर रहा था कि अपने भाई को कॉल कर, अपने भाई को कॉल कर। I didn't call him. और मैंने उसे कॉल नहीं किया। The next morning a letter arrived for him. और दूसरे दिन एक पर्ची उसके पास आई। On Saturday this letter came and I knew he would be very happy to see this letter. और मैं ये जानता था कि जब लेटर उसको शनिवार को सुबह मिले तो वो काफी आनंदित होगा। But I got busy repairing the accident on my car all day. परंतु उस दिन मैं अपने कार जो एक्सीडेंट में थी उसे रिपेयर करने में काफी व्यस्त हो गया। In the evening I was so tired and I didn't call him. I just went to bed. और पूरा दिन काम करने की वजह से शाम को मैं थका हुआ था, इसलिए मेरे भाई को मैंने फोन नहीं किया और मैं सो गया। Sunday morning I got up and I went to church. और जो परमेश्वर का दिन है उस दिन मैं उठा और मैं परमेश्वर के भवन में गया। On the way I had another prompt to call my brother. और उसी जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ परमेश्वर बातचीत कर रहा है कि अपने भाई को फोन कर। I thought I will call him when I get home after church. मैंने ऐसे सोचा कि कलीसिया खत्म होने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो भाई से फोन करूंगा। We went to church, we came home, we started preparing lunch. हम कलीसिया से आए, हम घर पे आए और हम खाना बनाने की शुरुआत की। And suddenly I had a call. और तुरंत मुझे एक फोन कॉल आया। While my parents were in church, और मेरे माता पिता कलीसिया में थे। my brother had taken his own life. मेरे छोटे भाई ने अपनी जान ले ली। It was a big crash. ये एक बहुत ही कठिन बात थी। Everything under my feet had sunk. मेरे पैरों के नीचे की सारी जमीन हिल गई। I hadn't called him. मैंने उसे नहीं फोन किया। I was very distraught because I knew God was asking me to call my little brother. और मैं काफी चिंता में था, परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि अपने भाई से फोन कर। I was very upset that I didn't listen to God's voice, but also upset I had lost my little brother. मैं निराश था कि मैंने परमेश्वर की वाणी को नहीं सुना और उससे काफी निराश था कि मैंने छोटे भाई को खो बैठा। He was only 20 years old with the whole world ahead of him. वो सिर्फ 20 साल की उम्र का ही था, उसके सामने पूरी दुनिया थी। Today he would have been 48 years old. आज वो अगर रहता तो 48 इयर्स का होता। I struggled for a long time. मैंने काफी सालों तक इस बात से झुंझलाता रहा। I asked God to help me to respond when He asked me to do something. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे मदद कर कि जब कभी तेरी वाणी आए तो मैं उससे निभाऊं। My friends, we cannot alter the past. ओ मेरे प्रिय मित्रों, जो बीती हुई बातें हैं उसको हम बदल नहीं सकते। But we can bring the past to the altar of God. परंतु हम बीती हुई बातों को परमेश्वर की उस वेदी के सामने ला सकते हैं। We've all made mistakes. हमने कई लोगों ने काफी गलतियां की होगी। But from that day I made a vow to God that I will respond to every call. परंतु उस दिन मैंने निर्णय लिया कि परमेश्वर की हर एक वाणी को मैं उत्तर देते हुए उसे निभाऊंगा। I promised God that I will go anywhere. और मैंने परमेश्वर से वादा किया कि मैं कहीं भी चला I जाऊंगा। promised God that I will do anything. और मैंने परमेश्वर के सामने तेरे लिए कुछ भी करूंगा। Anything that He asks me of. तू जो कुछ भी मुझसे मांगेगा मैं तेरे लिए करूंगा। Today can I encourage you? क्या मैं आप सबको उत्साह दे सकता हूँ? Has God told you to do something? क्या परमेश्वर ने आपको कुछ कार्य करने के लिए कहा है? Lazarus heard Jesus. He got up and responded to his miracle. लाजर ने यीशु की वाणी को सुना और वो जी उठा। Don't leave it. Don't ask God for other directions if you haven't done what He's asked you to do. परमेश्वर से कोई दूसरे वाणी के लिए नहीं मांगे अगर परमेश्वर ने आपको किस बात को पहले से ही कह रखा है। We see in this story both Martha and Mary come to Jesus and say, Jesus, only if you had come earlier, my brother would be alive. इस कहानी के पहले में हम ऐसे पढ़ते हैं कि मार्था और मरियम ये दोनों बहनें कहती थी यीशु मसीह कि अगर तू जल्द आता तो लाजर आज जिंदा होता। Let's not complain about what the Lord hasn't done. ऐसी हम परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य नहीं किया उसकी हम ताड़ना ना करें। Let's not complain about the prayers that haven't been answered. हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला इसलिए हम ताड़ना ना करें। Let's not complain about the miracles you're still waiting for. हम जिस आश्चर्य कर्म के लिए बाट देख रहे हैं इसलिए हम उसकी ताड़ना ना करें। Let's not worry about the breakthroughs that haven't happened. जो छुटकारा होना है वो नहीं हुआ इसलिए उसकी ताड़ना ना करें।
but instead let's do what He has asked us to do first. परंतु हम उस बातों को करें जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। Church, is there a response that He is holding your miracle this morning? कलीसिया, क्या एक प्रत्युत्तर है जो आपके आश्चर्य कर्म को रोके रखा है? Let's read verse 44 and we'll unlock the third key. और हम तीसरी बात की ओर बढ़ेंगे जो यूहन्ना 11:44 में लिखी है। Verse 44, and he who had died came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him, let him go. और यहाँ यूं लिखा है, जो मर गया था वो कफन के हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। The third key is there something binding you from receiving your miracle. और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके आश्चर्य कर्म को बांधी रखी हुई है? Have you removed your grave clothes? जब आप अपने अंगोछों को निकालोगे, Jesus calls others to participate in this. और यीशु मसीह अन्य लोगों को इसमें सहभागिता के लिए वो बुलाता है। We see Lazarus was fully bandaged up. हम देखते हैं कि लाजरस के पूरे पांव और सभी कुछ बंधे हुए थे और मुंह अंगोछों से लिपटा हुआ था। When you are bandaged up with the past, जब हम हमारी पुरानी बातों से अगर हम बंधे हुए हैं, you cannot speak. तो हम बातें नहीं कर सकते। You cannot use your hands. तो हम अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। You cannot be free. हम मुक्त नहीं हो सकते। But Jesus says, loose him and let him go. परंतु यीशु मसीह ऐसा कहता है, उसे खोल दो और जाने दो। You know, Jesus Christ sets us free. यीशु मसीह हमें मुक्त देता है। But a lot of people who have encountered Jesus, परंतु कई ऐसे लोग जिन्हें यीशु मसीह को देखा है, they are still walking in their grave clothes today. वे आज भी उस कब्र के अंगोछों को लेके हुए चल रहे हैं। And Jesus is saying, get rid of the grave clothes. परंतु यीशु मसीह ऐसा कहता है, उस अंगोछों को निकाल दो। I see a lot of people who have found Christ. मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने यीशु मसीह को पा लिया है। They have received their miracle, उन्होंने अपनी चंगाई को पा लिया है, but they are still walking around with their old habits. परंतु वे अपनी पुरानी रीति में आज भी चल रहे हैं। They are still walking around with their old attitudes, वो अपने पुराने कार्य के अनुसार अपने जीवन को with बिताते their हैं, old traditions, अपने old traditions के अनुसार, old bondages. और जो पुराने बंधत्व है उसमें चले जा रहे हैं। Friends, we need to be free from our grave clothes. मित्रों, हमें इस कब्र के अंगोछों को और कपड़ों को निकाल देना है। If you feel you are tied up this morning, Jesus is saying it's time to be released. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पुरानी बातों से उस कपड़े में अंगोछों में बंधा हुआ हूं, तो यीशु मसीह कहता है आज ये समय है उसे निकालने के लिए अपने जीवन में से। And this is where the church is so important. और यही वो स्थान है, ये क्षण है जहां कलीसिया काफी महत्व है हमारे जीवन में। We are the hands that help people take off their grave clothes. हम वो लोग हैं कलीसिया में जो लोगों के उस पुराने बात और अंगूछों को निकालने के लिए। And if there's somebody here this morning that needs pastoral care, और यहाँ कोई ऐसा है जिनको पास्टरल की केयर की जरूरत है, तो anyone here who needs counseling, और ऐसा कोई है जिनको काउंसलिंग की जरूरत है, can I ask you to reach out to your pastors? तो मैं क्या आपसे ये कह सकता हूँ आप अपने पास्टर से जाके बात करें। Can I tell you to reach out to your leaders? मैं क्या आपसे ये कह सकता हूँ अपने लीडर्स, नेतृत्व करने वालों के साथ जाके बात करें, Because we need to release our grave clothes. क्योंकि हमें उस कब्र के कपड़े और अंगूछों को निकाल देना है। Is something binding you up from your miracle this morning? क्या ऐसे कुछ बातों में हम बंधे हुए हैं जो हमारे आश्चर्य कर्म को रोके हुए हैं? Hallelujah. Verse 45. और उसके 45 आयत में देखेंगे, Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and Martha had seen what Jesus did, put their faith in him. तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। The fourth key to our miracle is, have you seen what God has done for you? और चौथी बात हमारे आश्चर्य कर्म के लिए ऐसा है कि क्या तुमने उस बातों को सुना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। If you have any doubts this morning, remember what the brother was saying, the goodness of God that has happened in your life.
अगर हमारे जीवन में कोई शंका या निसंकोच है तो उस बातों को याद रखें कि जैसे उस भाई ने कहा था, Have you seen and believed that miracles do happen? क्या आपने देखा है और महसूस किया और अनुभव किया है कि आश्चर्य कर्म आज भी होते हैं? I think this is the most important key to finding your miracle. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कुंजी है जो हमारे आश्चर्य कर्म को ढूंढने के लिए हमें दिशा दिखलाती है। When we hear of other miracles, जब हम दूसरे आश्चर्य कर्म के बारे में our सुनते हैं faith starts growing, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है and an atmosphere is created for the Spirit of God to move. और एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रूप से कार्य करता है And miracles start happening और again. आश्चर्य कर्म फिर से शुरू होने लगते हैं। You know, when I go to India, जब मैं भारत जाता हूँ, we go to some remote places. हम कुछ गांव में जाते हैं, They come with so much expectation, with so much faith, वे इतने विश्वास और इतनी आशा से हमारे सभाओं में आते हैं and miracles just happen every day और आश्चर्य कर्म हर रोज वहां होते हैं because they have so much faith. क्योंकि उनके पास इतना सारा विश्वास है। When your faith turns into expectant faith, जब आपका विश्वास उस आश्चर्य कर्म के विश्वास में बढ़ता है, it turns and it allows God's glory to shine. तो वो उस क्षण में परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर हमारे उस आश्चर्य कर्म में चमकने के लिए आगे बढ़ती है। Let me share another story. मैं और एक कहानी आपके बीच में Do बांटना you like चाहता हूं। stories? क्या आपको कहानियां पसंद है? Yeah, it is about my auntie, my Fua. और मेरे बुआ के विषय में ये कहानी जुड़ी है My उनसे। granddaughter is sitting here. मेरी ग्रैंडडॉटर जो है वो यहाँ बैठी है। You know, when I was about 12 years old, जब मैं 12 साल का था, my dad's sister suddenly became paralyzed, waist down. मेरे पिताजी की बहन जो मेरी बुआ है वो कमर से नीचे पूरी तरह पैरालाइज हो गई। They went and saw all the medical specialists. उन्होंने सारे जो मेडिकल के स्पेशलिस्ट थे उनसे जाके वे मिले। They went to every witch doctor they could find. और हर एक जादू टोना करने वाले जो उन्हें मिल सकते उन हर एक के पास वे गए। They were Hindus, the whole family was Hindus. उनका पूरा परिवार जो था वो हिंदू था। But after trying everything, परंतु सारी बातों का अनुभव करने के बाद my fufa brought her to our place. मेरे जो फूफा है उन्होंने हमारे कलीसिया को हमारे पास लेके आए And he said to my dad, see what your God can do for her. और फूफा ने ऐसे मेरे पिताजी से प्रश्न किया, देखो तुम्हारा देख सके क्या तुम्हारा परमेश्वर क्या करता है। They had 3 children, you know, under 5 years old. और 5 साल से भी नीचे उनके 3 बच्चे थे। And she was paralyzed waist down. और वो कमर से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज थी। She couldn't do anything. वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकती थी। She had no hope. और उसके पास कोई आशा नहीं थी। Only a miracle of God could change the situation. सिर्फ एक परमेश्वर का आश्चर्य कर्म ही सारी परिस्थिति को बदल सकता है। We started praying and fasting. और हम लोग उपवास और प्रार्थना करने लगे। There was a whole week of fasting and praying. एक पूरा सप्ताह हम उपवास और प्रार्थना में लगे रहे। Every day in the church there was meetings and we'd go to the meetings. और हर दिन उस हफ्ते में कलीसिया में सभा होती थी और उस हर एक सभा में हम जाते थे। And as she started staying with us, her faith started to grow. और जैसे वो हमारे साथ रहने लगी उसका विश्वास बढ़ने लगा। She was hearing and seeing what God had done for other people. और वो अन्य लोगों की गवाहियों को सुन के वो देख के वो इस बातों को देखती थी और सुनती थी भी थी। She started believing for the miracle. और वो अपने खुद के आश्चर्य कर्म के लिए विश्वास करने लगी। On Monday we prayed. हमने सोमवार को प्रार्थना की, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। Tuesday we prayed. मंगलवार को हमने प्रार्थना की, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। Wednesday we prayed. बुधवार को हमने प्रार्थना की, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। But her faith was growing. परंतु उसका विश्वास बढ़ रहा था। The faith muscle was growing. और उसका जो विश्वास का है वो बढ़ रहा था। On Friday she woke up और शुक्रवार को वो जब उठी and told my dad that I saw in a dream that I am walking. और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मैंने स्वप्न में देखा है कि मैं उठ खड़ी हुई हूँ और मैं चल रही हूँ। Suddenly her faith had moved just from faith to an expectant faith. उसका जो विश्वास है वो आगे और बढ़ के एक आश्चर्य कर्म के विश्वास के स्तर पर जा पहुंचा। She started believing and she started seeing a miracle. और वो उसके आश्चर्य कर्म को देखने लगी और उस आश्चर्य कर्म के ऊपर विश्वास करने लगी।
that evening in a meeting. और उस शाम को उस सभा में, You know, she must have been paralyzed for over 4 months or 6 months, I can't remember. मैं ठीक तरह से याद नहीं है, परंतु कम से कम 4 या 5 महीने वो पूरी तरह से पैरालाइज थी। I was a 12-year-old watching it. और मैं 12 साल का था और मैं इस बात को देख रहा था। Just like in the Bible, it says those Jews were watching what Jesus did to Lazarus. जैसे हमने इस वचन में पढ़ा था, वो यहूदी लोग जैसे लाजरस को मृतकों में से जिला गया इस आश्चर्य क्रम को देख रहे थे। The pastor took her hand और पासवान ने उसके हाथ को पकड़ा and asked her to stand up, और उससे कहा तू खड़ी हो, and she stood up. और वो खड़ी हो चुकी। I couldn't believe my eyes. और मैं खुद अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पाया। Next thing he asked her to take a step. और दूसरी बात पासवान ने कहा कि तू एक कदम ले। Next minute she was walking to shouts of glory to God. और कुछ ही मिनटों के अंदर वो परमेश्वर को महिमा देते हुए वो चलने और फिरने लगी। I was just 12 years old. मैं सिर्फ 12 साल का था। I was very smart at school. मैं स्कूल में काफी शिक्षा में आगे था। I used to question God. मैं परमेश्वर से प्रश्न करता था। I used to question my parents. मैं अपने माता पिताओं से प्रश्न करता था। But when I saw that miracle, परंतु जब मैंने उस आश्चर्य को देखा, when I saw these other miracles, मैंने और अनेक आश्चर्य कर्म देखे, my mind was very clear. ओ मेरा मन एकदम सीधा था That our God is a miracle working God. कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्म करता है। And today I stand here because I know my Redeemer lives. मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है। I know that my God is a healer. मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि He मेरा is a परमेश्वर restorer. छुटकारा देने वाला है। He is the greatest physician. वो एक सबसे महान फिजिशियन है। He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा और ओमेगा है। He is the beginning and the end. वो आदि और अंत है। And I will tell this over and over and over again. और मैं इस बात को हमेशा दोहराते और दोहराते रहूंगा। If you have encountered Jesus, अगर आपने यीशु मसीह का सामना किया है, make sure you repeat that message over and over again to others. तो वही संदेश को फिर से फिर आप लोगों से और बतलाएं। Whether it's your story, whether it's somebody else's story, tell it to them. अगर ये आपकी कहानी है या किसी और की कहानी, आप लोगों को जाके बतलाओ। Because we need to reveal Jesus to this broken world. क्योंकि हमको यीशु मसीह को इनके सामने प्रकाशित करना है। The Bible says the Jews saw what Jesus did and many believed in him. क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं कि लोगों ने देखा वो यीशु ने क्या किया और अनेकों ने विश्वास किया। When people hear and see about your miracle, they will turn to God. जब लोग आपकी कहानियों को, आपके आश्चर्य कर्म को देखेंगे और सुनेंगे, वे परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। Let me wrap up this message this morning. और मैं इस संदेश को अभी यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। I've shared with you 4 keys. और मैंने 4 बातों को आपसे कही है। Different keys might apply to different people this morning. और हर एक बात अलग-अलग तरह से अलग-अलग लोगों के लिए कार्य में होगी। There might be people sitting here who need a stone rolled away. ऐसे कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके लिए अपने जीवन में से उस पत्थर को निकालना है। There is something standing between God and your miracle. परमेश्वर और आपके आश्चर्य कर्म के बीच में कुछ बाधाएं बनी हुई है। I'm not sure what it is. मैं नहीं जानता वो क्या होगा। Maybe it's your job. शायद वो आपकी नौकरी होगी। Maybe it's your pride. शायद वो आपका घमंड होगा। Maybe it's your wealth. शायद वो आपका धन होगा। Whatever it is, शायद कुछ भी हो। if that is stopping you from the miracle, अगर वो आपके आश्चर्य कर्म को रोके हुए है, Jesus is saying to you, roll away the stone. यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है उस पत्थर को हटाओ। He's saying, move the stone. वो कहता है उस पत्थर को हटाओ। I don't know who it is, मैं नहीं जानता वो कौन but है, I'm sure God is talking to you this morning. परंतु मुझे यकीन है यीशु परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। There's a second lot of people here और यहाँ दूसरे चिन्ह के जो लोग हैं who haven't responded to what God asked them. जिन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया जब यीशु मसीह की वाणी उनके पास पहुंची। He asked you over and over again. परमेश्वर की वाणी फिर से आपके पास आई। He might have spoken to you through other people, और परमेश्वर ने आपको अन्य लोगों के द्वारा बातचीत की through होगी, other prophets and pastors. अन्य भविष्यवक्ताओं, अन्य पासवानों के द्वारा। He has been giving you signs and wonders. वो आपके सामने चिन्ह दिखला रहा है He's been giving you nudges, और वो आपको छोटी-छोटी बातों की भी और दर्शा रहा है, but you haven't responded. परंतु आपने उसका उत्तर नहीं दिया। Will you respond to him this morning? क्या आप इस सुबह के अवसर में उसको वाणी को, उसके कार्य को उत्तर दोगे?
because everything will change. तो हर एक आपके जीवन में बदल जाएगा। I always think if I had called my brother that day, the 3 days, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूँ, क्या काश मैंने मेरे भाई को उस 3 दिन में फोन किया होता, what might have happened? क्या हुआ होता। If God is asking you to respond, make sure you respond this morning. अगर परमेश्वर आपसे उत्तर मांग रहा है तो आप यकीन के साथ उस उत्तर को निभाएं। There might be other groups of people that have found Christ. यहाँ दूसरे ऐसे लोग वो होंगे जो They found Christ. उन्होंने यीशु मसीह को पाया है। You have received your miracle, आपने अपनी चंगाई को पाया है, but you are still walking around in your grave clothes. परंतु आप वही कब्र के कपड़ों में फिर से आप घूम रहे हो। You're not fully free. आप संपूर्ण तरह से मुक्त नहीं पाए हो। You can't give your full to God आपने आपकी संपूर्ण रीति समर्पित परमेश्वर के हाथ में नहीं कर सकते हो, because your hands are tied up, क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, because your face is all tied up with clothes. क्योंकि आपका मुंह हरे कपड़ों से ढका हुआ है, बंधा हुआ है। Jesus wants to release you this morning. आज यीशु मसीह सुबह के अवसर में आपको चंगाई देना चाहता He है, wants to make you free this morning. और आपको वो मुक्ति देना चाहता है। Because the moment you got saved, जिस समय यीशु मसीह ने आपको बचाया, the moment you received your miracle, जिस समय आपने अपनी चंगाई को प्राप्त किया, you have joined him in his mission. और आपने इस योजना में आप उसके साथ शामिल हुए हो। And he says the harvest is great, but the laborers are few. और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि कटनी काफी है पर कार्य करने वाले काफी कम हैं। But sometimes we have these grave clothes, परंतु हमारे पास कई बार इस कब्र से जुड़े हुए कपड़े हैं, and we can't see God's plan for humanity. और हमने जो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना है उसे देख नहीं And we end पाए, up doing other things और हम अनेक बातों में व्यस्त हो जाते हैं, because we can't see what God wants you to do. क्योंकि हम उस बातों को देख नहीं सकते जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। And there will be some people here who have forgotten about their victories. और वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जो विजय परमेश्वर ने दिया उस बातों को वे भूल गए। You are hesitant to share your faith with others. और आप डरते हैं अपने विश्वास को लोगों से बांटने के लिए। Similar to what you guys are doing. Last week, 3 days, we had outreach in our city. और पिछले हफ्ते 3 दिन हमारे शहर में परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा गया। After a long time, I went into the street to witness to people. और काफी देर के समय बाद मैं रास्ते में गया चौराहे में परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। I realized I had forgotten to share my victories with other people. और मैंने ये अनुभव किया कि मैं भूल गया मेरी विजय को लोगों को बताने के लिए। I have been busy preaching in churches, और मैं कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन बांटते रहा, in my life groups, और मेरे जो ग्रुप है उनमें बांटता रहा, in my discipleship groups. और मेरे जो चेले के ग्रुप है उनमें बांटता रहा। But I forgot about the harvest that's outside. और परंतु मैं भूल गया जो कटनी बाहर है। And as I started sharing, और जैसे मैं परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने लगा, we met so many people. मैंने कई लोगों से हम लोग मिले। In 3 days, we met 333 people. और इन 3 दिनों में 333 लोगों से हमने मुलाकात ली। About 100 of them rejected us, और उनमें से 100 लोगों ने हमें ठुकराया, but the others responded. परंतु अन्य लोगों ने हमें उनका प्रत्युत्तर दिया। We had 5 people who wanted to come to church. और हम उनमें से 5 लोग थे जो हमारी कलीसिया में आना चाहते थे। One person was ready to get baptized और एक व्यक्ति तो ऐसा था जो बपतिस्मा के लिए तैयार था, because I was prepared to share what God had done for me. क्योंकि मैं तैयार था जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया है उस बातों को बतलाने के लिए। I don't have to go and preach there. मुझे वहां जाके संदेश नहीं देना है। We only have a 15-second testimony we share with people. और हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड की गवाही होती है जब हम लोगों से बांटते हैं। All we say, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं there was a time in my life कि हमारे जीवन में ऐसा एक समय था, I was lost and hopeless. मैं खोया हुआ था और निराशा में था, But then I found Jesus परंतु जब मैंने यीशु मसीह को पाया and my life changed. तो मेरा जीवन बदल गया। 15 seconds सिर्फ 15 सेकंड, and they will want to know more. और वो और जानना चाहते हैं उसके विषय They में, will say, what happened? और वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ आपके साथ। And then you get to share your miracles. तो फिर आप अपने आश्चर्य क्रम को उनके साथ आप बांट सकते हो। So if it's you this morning, अगर आप उस तरह के उस ग्रुप के व्यक्ति हो तो can I ask you to bow your heads
and start thinking which key applies to you this morning. तो आप अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और देखें कि इन 4 बातों में से कौन सी बातें हैं जो मेरे जीवन में लगी है। I want to pray for you this morning. इस सुबह के अवसर में आप हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Oh, hallelujah. Thank you, Father. Shandara Rabasikiria. Hallelujah. Thank you, Father. Heavenly Father, I come to you this morning. ईश्वर के पिता, इस सुबह के अवसर में मैं तेरे पास आता हूँ। I pray for everyone that is here this morning, Lord. उन हर एक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज इस सभा में है। I pray for everyone that has opened their heart to your word this morning. और हर कोई उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे वचन के लिए अपने मनों को खोला है। Whatever it is this morning, Lord, I pray that you will help them, Father. जो कोई भी उनके जीवन में समस्या हो, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता की तू उनकी मदद कर। If there are people here who need to roll away the stone that's blocking their miracle, यहाँ कोई अगर वही लोग हैं जो अपने जीवन में से पत्थर हटाना चाहते हैं अपने आशीर्वाद, Father, I pray that you help them this morning. ईश्वर के पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तो आज उनकी मदद कर। Bring the right people in their lives to move that stone away. उनके जीवन में नियुक्त लोग तू ला ताकि वो पत्थर को वे हटा सके। Lord, if there are people here who are hesitant to respond to your word, oh God. और अगर शायद कुछ लोग ऐसे यहाँ हैं जो तेरी वाणी को उत्तर नहीं दे पा रहे, if there are people who haven't taken heed of your calling on their lives, और तेरी वाणी को वो अपने जीवन में सबसे पहला आदेश पकड़ के नहीं बिता रहे, Lord, I pray that you help them to hear your word. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे वचन सुनने के लिए, तेरी वाणी सुनने के लिए उन्हें मदद कर। Help them to respond to your word, oh God. उन्हें मदद कर कि तेरे वचन, तेरे वाणी का वे उत्तर दे सके। Give them the boldness, Lord, this morning to make a decision, oh God. इस सुबह के अवसर में उनमें सामर्थ्य दे कि तेरी वाणी का उत्तर वो देख सके। Hallelujah. Lord, if there are people here who are still struggling with the past, परमेश्वर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अपने पिछली बातों में सिर्फ झुंझलाते हुए हैं, they have the bondages from the past, और उनके पिछले गलतियों से वो बंधन में बंधे हुए हैं, I pray that you will release them of their grave clothes this मैं morning. प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें तो उन कब्र के कपड़ों से उन्हें छुटकारा दे। Lord, maybe it's bad habits they can't get rid of. उनकी बुरी आदतें हैं वो अपने जीवन में से निकाल नहीं पा रहे। Only you can help us, oh Father. सिर्फ तू ही कर सकता है स्वर्गीय पिता। Oh Father, I pray that you touch them right now in the name of Jesus. स्वर्गीय पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में उन हर एक को तू छू। From the crown of their heads to the sole of their feet, oh God. उनके सिर के तलों से लेके पांव के तलों तक उन्हें छू तू। Let the Spirit flow through them, oh God. और पवित्र आत्मा उनके द्वारा बहने दे And release them of their grave clothes. और उन वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उन्हें भरे कि वे उस बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। Heavenly Father, I pray that you help us ईश्वर के पिता मैं प्रार्थना करता कि तो हमें मदद कर to go out there and share our victories with other people. कि कलीसिया के बाहर भी लोगों को जाके बतलाए जो यीशु मसीह के द्वारा जय हमें मिले हैं। Lord, help us to reach the unreached. ओ परमेश्वर तो हमें मदद कर कि जो तुझे नहीं जानते वहां तक हम पहुंच सके। We don't have a lot of time left, I know, Lord. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है परमेश्वर। We know you are coming back soon, Father. हमें यकीन है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। We don't want anybody to die without knowing you, Jesus. हमारी यही प्रार्थना है कि कोई भी तुझे जाने बिना मरे नहीं। We don't want anyone in Fairfield not to know you, Father. हम सिर्फ इस फेयरफील्ड शहर के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि तुझे जानता ना हो। We don't want anybody in this state not to know you, Father. और इस एनएसडब्ल्यू राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं ऐसा कोई ना हो जो तुझे जानता ना हो। We don't want anyone in this country not to know you, Lord. और इस देश के लिए ऐसे प्रार्थना करते हैं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो तुझे जानता ना हो। Lord, help us to reach out to people. ओ परमेश्वर हमें तू मदद कर कि ऐसे लोगों के पास हम पहुंच सके। Give us the courage, Father. हमें तू सामर्थ दे। Give us the boldness. और हमें तू और बलवंत कर। Heavenly Father, I thank you for this time. स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for your word. तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। May it be like a seed in our hearts, Lord. ये हमारे मन में एक बीज के समान बना रहे। I pray for your blessing and your favor upon this congregation. मैं तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह को इस सभा के ऊपर मैं ऐलान करता That हूँ this ministry will flourish in ताकि this. ये सेवकाई और फलवंत रीति से आगे बढ़े। It will stand like a light on the top of a hill, oh Father. और ये पहाड़ के ऊपर एक लाइट के समान बने रहे। In Jesus' name I pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। And everybody say, और हर एक कोई कहे आमीन।